Good morning, everyone. In today's video, we will talk about activity ratio. Activity ratio is also known as turnover ratio और assets management ratio. जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी लेंडर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, उनके जो पैसा है वो किसी ना किसी एसेट्स में इन्वेस्ट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें उससे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा इन एसेट्स का उतना ही ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकता है. The funds of lender and owners are invested in various assets to generate revenue from operation and profits. The better the management of these assets, the larger the amount of revenue from operation. Activity ratio enables the firm to know how efficiently these assets are employed by it. These ratio indicate the speed with which assets are being converted or turned into revenue. Hence, it is also known as turnover ratio or assets management ratio. तो हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक एक्टिविटी रेशो एक ऐसा रेशो है जिसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में रिलेशन देखते हैं और देखते हैं कि जिस फंड में जिस एसेट्स में ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसमें रिलेशन. सो इन दिस वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड investment in various assets of a firm. Activity ratios are used to determine the efficiency of organization in utilizing its assets for generating cash and revenue. It is used to check the level of investment made on an assets and revenue that is it generating. ये यूज़ होता है चेक करने के लिए कि किस एसेट्स पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. For this reason, activity ratio is also known as efficiency ratio and more popularly it is also known as turnover ratio. The role of activity ratio or turnover ratio is in the evaluation of efficiency of a business by careful analysis of inventory, fixed assets and account receivables. Types of activity ratios. There are different type of activity ratios. Some of them are discussed here. Some of them are mentioned here. First is stock turnover ratio, debtor turnover ratio, creditor turnover ratio, working capital turnover ratio, total assets turnover ratio, fixed assets turnover ratio, current assets turnover ratio. In this video, we will be talking about stock turnover ratio, which is also known as inventory turnover ratio. ये तो हम सभी जानते हैं कि जो इन्वेंट्री है और प्रॉफिट है उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये इंश्योर करे कि उसके पास एक रीज़नेबल इन्वेंट्री मेंटेन है हमेशा, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी स्टॉक कोई भी वेस्टेज ना हो और जो भी हमारा प्रोटेक्शन है उसमें कुछ भी डिले ना हो, कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन होता रहे. तो इसलिए रीज़नेबल इन्वेंट्री मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The quantity of inventory should be sufficient to meet the demand of business, but it should not be too large to indicate unnecessary locking up of capital in inventory. Danger of inventory items becoming obsolete, resulting in waste by passing of time. Inventory turnover ratio is calculated to consider the adequacy of quantum of capital and its justification for investing in inventory. So this is inventory turnover ratio is one of the most important turnover ratio which highlights the relationship between inventory in business and cost of goods sold. ये जो रेशो है ये हाईलाइट करता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेंट्री में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. It shows how fast the inventory gets cleared in accounting period, or in other words, the number of time the inventory or stock gets sold or consumed. ये जो रेशो है ये हमें बताता है कि कितना टाइम जो एक बिजनेस साइकिल में स्टॉक कंज्यूम्ड होता है या सोल्ड होता है. फॉर दिस रीज़न इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. इसका जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसमें हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करना है. इसका जो ए पॉइंट है वो हम पहले देखते हैं. हमें
ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, जो हमारा फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशो का, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे। देखो, इसके तीन मेथड्स हैं। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है उस केस में हमारे पास इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज दे रखा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड ओपनिंग इन्वेंट्रीज, परचेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वी विल डिडक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग इन्वेंट्रीज, परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएंगी। अगर हमारे पास ये नहीं दिया हुआ, अगर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है प्लस हमें ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है, तो हम उससे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल सकते हैं बाय एडिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड फ्रॉम दिस वी विल हैव टू डिडक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। और अगर हमारे पास ये कुछ नहीं दिया हुआ तो हम डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। एंड फॉर एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हम ओपनिंग इन्वेंट्रीज़ में से ओपनिंग इन्वेंट्रीज़ और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय 2, तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। सो इन प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो हम लास्ट वाले इक्वेशन के थ्रू, जिसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो 3,20,000 में से अगर हम 25% डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास 2,40,000 आ जाएगा। तो 2,40,000 क्या आया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमने देखा, एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे और टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 31,000। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय 2, देन बाय दिस वी विल गेट 30,000। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की भी वैल्यू आ गई और एवरेज इन्वेंट्री की भी वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वी विल गेट 2,40,000 divided by 30,000. So by this we will get the amount of inventory turnover ratio, that is 8 times. अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें दे रखा है 3 lakhs, परचेजेस दे रखा है हमें 3,30,000 और हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 60,000। तो इसमें हम सबसे पहले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हम इस सेकंड नंबर नहीं, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, जो था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। अब इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है और हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की निकालनी है। तो ये फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, बस हम क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को राइट हैंड साइड ले आएंगे। सो बाय पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 क्वेश्चन में गिवन है, परचेजेस भी गिवन है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। इस इक्वेशन से हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मिल गई है, दैट इज़ 90,000। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, तो 3 lakhs डिवाइडेड बाय 75,000। 75,000 कहाँ से आया, ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज होल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज़ 90,000 हमने इस इक्वेशन से निकाली और उसको होल को डिवाइड किया हमने 2 से। तो बाय दिस वी विल गेट 75,000। सो फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वी विल put the value, that is cost of revenue from operation
डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 lakhs, उसको हमने डिवाइड किया है 75,000 से। सो वी विल गेट द आंसर 4 times। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस डेटर टर्नओवर रेशियो in upcoming video. Thank you for watching.